ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ لاکھوں فرزندان توحید حج اکبر کی سعادت سے مشرف، مسلمانوں کو احکام الہی کی پابندی کرنے مفتی اعظم نے کی تلقین۔ شہر میں قربانی کے جانوروں کی منمانے قیمتوں میں فروخت، عید سے ایک دن قبل قیمتوں میں کمی کا امکان۔ مشیرآباد آئی ڈی ایچ کالونی میں مکانات کی تعمیر کا چیف منسٹر نے رکھا سنگ بنیاد، بیگم پیٹ تا بلکم پیٹ لنک روڈ کا افتتاح۔ اور اورنگ آباد میں بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مجلسی امیدواروں کے ہمراہ دورہ، عوام نے کیا زبردست خیر مقدم۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دنیا کے کونے کونے سے ارض مقدس پہنچے لاکھوں فرزندان توحید حج اکبر کی سعادت سے مشرف ہو گئے ہیں۔ حجاج رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرنے کے بعد مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ خطبہ حج دیتے ہوئے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ نے مسلمانوں کو احکام الہی کی پابندی کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ کسوہ کی تبدیلی بھی عمل میں آئی۔ پیش ہے تفصیلی رپورٹ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بلا امتیاز رنگ، زبان اور حیثیت، صرف ایک ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر لاکھوں فرزندان توحید جمعے کو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ میدان عرفات میں جمع ہوئے۔ مساوات کا یہ عظیم اجتماع جہاں کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی اور نہ کوئی کالا ہے نہ گورا، لیکن تمام کا کلمہ ایک ہے اور تمام کے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ایسے اجتماع کی مثال دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بندے صرف اس کی عبادت میں مصروف ہیں۔ جمعرات کو مینا میں شب گزارنے کے بعد لاکھوں فرزندان توحید جمعے کو حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر چکے ہیں۔ حجاج مناسک حج کے پہلے مرحلے میں مکہ مکرمہ سے مینا پہنچے تھے۔ مینا میں حجاج نے توبہ و استغفار کے ساتھ دعاؤں میں رات گزاری۔ میدان عرفات میں حجاج نے تاریخی مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنا اور ظہر و عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں۔ اس سال جمعے کی وجہ سے حجاج حج اکبر کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ باوجود اس کے مسجد نمرہ میں نماز جمعہ نہیں بلکہ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی گئیں، کیونکہ حج کے دن نماز جمعہ نہیں ہے۔ حجاج اکرام نے نمازوں کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات کی مشرقی سمت میں واقع جبل رحمت جا کر دعائیں مانگیں۔ غروب آفتاب تک حجاج توبہ اور استغفار کے ساتھ نوافل کی ادائیگی میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ حجاج اکرام مناسک حج کے اگلے مرحلے کے لیے مزدلفہ روانہ ہو گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ حج کے بعد ظہر اور عصر کی نمازوں کی ادائیگی کے بعد غروب آفتاب کے ساتھ ہی مزدلفہ روانہ ہوئے تھے، جہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں۔ اتباع رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے حجاج غروب آفتاب کے ساتھ مزدلفہ پہنچ چکے ہیں۔ مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے جہاں نہ کوئی خیمہ ہوگا نہ کوئی آسرا، پوری رات حجاج اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ مزدلفہ میں حجاج رمی جمار کے لیے کنکریاں بھی جمع کریں گے اور 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مزدلفہ سے واپس مینا اپنے قاموں کو واپس لوٹائیں گے اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد حجاج فریضہ قربانی ادا کریں گے اور بال کٹوا کر احرام کی بندش سے آزاد ہو جائیں گے۔
اللہ ताला के मेहमानों को मुमकिना सहूलतें पहुंचाने के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। इससे पहले सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने खुतबे हज में कहा कि इस्लाम एक इंसान का दूसरे इंसान को कत्ल करना सबसे बड़ा फितना और हराम करार देता है। मुसलमानों को यह ज़ेब नहीं देता कि वो किसी फितने और जदल में पड़े और फिसाद बर्पा करें। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुसलमान हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि वो अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। मैदान अरफात में खुतबे हज के दौरान मुसलमानों को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने नफ्स को काबू में रखें। अगर इंसान अपने नफ्स पर काबू ना पाए तो वो बहुत पस्तियों में गिर जाता है। मुफ्ती आजम ने कहा कि इंसान अपने नफ्स को छोड़ दे तो वो अपनी शहवत का गुलाम बन जाता है। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करे और नेमतों का शुक्र अल्लाह के सामने करें। मुसलमान हुक्मरानों को आपस में ताउन करना चाहिए। हुक्मरानों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो तक़वे को इख्तियार करें और अपने अवाम की मुश्किलात को समझें। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो साजिशों का दौर है। दीन के दुश्मन मुसलसल साजिशों में मसरूफ़ हैं। मुसलमानों को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ऐ मुसलमानों, इस ज़माने के मीडिया का माशरे में असलाह लाने के लिए अहम किरदार है। आलम इस्लाम का मीडिया अपनी जिम्मेदारों को पूरा करे। मीडिया का मकसद ये हो कि वो समाज में इस्लाह और अच्छाई का दर्ज दे। मुस्लिम मीडिया की जिम्मेदारी ये भी है कि वो सच्चाई और हक का परचम बुलंद रखें। उन्होंने कहा कि खारजियों ने फिसाद बर्पा कर रखा है। शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा कि दाइश के लोग ख्वारिज और इंसानियत के दुश्मन हैं। अल्लाह ताला फिसाद को पसंद नहीं करता। जिन्होंने लोगों की इज्जतें लूटी, माल लूटा और नाहक कत्ल किया, उनका कोई दीन नहीं है। बेशक ये बहुत बुरा अमल है। वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं और ज़कात भी देते हैं, लेकिन फिर भी नाहक गलत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मत मुस्लिमा ही बेहतरीन दाई है और इसी को पूरी इंसानियत को सीधे रास्ते पर लाना है। आपस में इत्तेफाक से रहना चाहिए, इख्तलाफात नहीं करने चाहिए, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करनी चाहिए। मुफ्ती आजम ने कहा कि अल्लाह के रास्ते में एक दिन का ठहरना दुनिया और माफिया से बेहतर है। हम पर लाजिम है कि हर इंसान के जानो माल की हिफाजत करें। आने वाली नस्लों को खून खराबे और फसाद से बचने की तलकीन करें। मुसलमानों पर सहाबा इकराम से मोहब्बत फ़र्ज है। शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा कि हमारा दीन और हमारा अकीदा और तमाम दीनी तालीमात फित्रे सलीमा पर मबनी है। फरिश्तों, अल्लाह की किताबों और नबियों पर ईमान हर मुसलमान का अकीदा होना चाहिए। हमारा दीन हुक्म देता है कि हम यकीन रखें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुल नबिय्यीन हैं। इस्लाम दीन हक़ और मुकम्मल दीन है। उन्होंने कहा कि इस्लामी तालीमात अख़वत और भाईचारे का सबक देते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हर परेशानी में सब्र से काम लेना चाहिए। इस्लाम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए मशल राह है। हमारा दीन इंसान की माशरती, रूहानी और अखलाकी तरबियत करता है। रूहानी तरबियत की मिसाल 5 वक्त की नमाजें हैं जो हमें अल्लाह से करीब करती हैं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल वक्त में हर सब्र और नमाज में पनाह लें। मुसलमानों को मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारा दीन यह हुक्म देता है कि सदक़े खैरात करते रहें। उन्होंने कहा कि इस्लाम की तालीमात में कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा गया जिसमें कोई राह न दिखाई दे। हुज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पर एक दूसरे की जानो माल हराम है। मुफ्ती आज़म ने कहा कि इस्लाम में हर किस्म की फहाशी को गुनाह और हराम करार दिया गया। अल्लाह ताला जुल्म से बचने का हुक्म देता है। अल्लाह के नज़दीक वही अफजल है जो तक़वे से ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि यही उम्मत इंसानियत को नेकी की दावत देती है और बुराई से रोकती है। इस्लामी शरीयत में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया है। हुक्मरानों को इताअत का हुक्म दिया गया है बशर्ते कि वह इस्लामी अहकामात पर अमल कर रहे हों। जब अल्लाह का हुक्म किसी बात में सामने आ जाए तो हर मुसलमान को उस पर अमल करना चाहिए। मुफ्ती आज़म ने कहा कि नशा अक्ल को तबाह कर देता है, फिर इंसान और हैवान में फ़र्क नहीं रहता। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अफजल दिन अरफे का है। खुतबे हज के अख्तिताम पर मुफ्ती आज़म ने दीन इस्लाम की सरबलंदी और मुस्लिम उम्मत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ फरमाई।
उधर जुमे की सुबह मक्का मुकर्रमा में गिलाफ काबा किस्वा की तब्दीली अमल में आई। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। गिलाफ काबा हर साल 9 जिलहज्जा को वकूफ अरफात के दिन तब्दील किया जाता है। नए गिलाफ काबा को 20 मिलियन सऊदी रियाल के मसारिफ से तैयार किया गया। नमाज फजर के बाद गिलाफ काबा की तब्दीली का अमल शुरू हुआ था। तब्दीली के इस अमल में हरम पाक की इंतजामिया और गिलाफ काबा बनाने वाली फैक्ट्री के मुलाजमीन शरीक थे। गिलाफ की तैयारी में खालिस सिल्क और 165 किलो सोने और चांदी का इस्तेमाल किया गया है। इस गिलाफ का साइज 658 मुरब्बा मीटर है और यह 47 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हर हिस्से की लंबाई 14 मीटर है जबकि चौड़ाई 95 सेंटीमीटर है। जमीन से 3 मीटर की बुलंदी पर नस्ब काबा शरीफ के दरवाजे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। इस गिलाफ मुबारक को काबे की 4 दीवारों के अलावा दरवाजे पर भी आवेज़ां किया जाता है। उतारे जाने वाले गिलाफ के टुकड़े बैरूनी ममालिक से आए सरबराहान मुमलिकत और दीगर मौजूजीन को बतौर तोहफा पेश किए जाते हैं। वाज़ेह है कि मक्के में गिलाफ खाना काबा की तैयारी के लिए खुसूसी फैक्ट्री भी कायम की गई है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। शहर में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर बड़े, छोटे और औसत किस्म के जानवरों की फरोख्त हो रही है। अवाम का कहना है कि बकरों की कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ईद से कबल शायद बकरों की कीमत में कमी वाक़ होगी। ये भी कहा जा रहा है कि दशहरे के बाद शहर में और भी बकरे आ सकते हैं। शहर के अहम मराकिज टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, जियागुड़ा, काचीगुड़ा, अंबरपेट, चंद्रानगोट्टा, चंचलगुड़ा, गोशा महल, गवर्नमेंट प्रेस, मलकपेट, इंजन बौली, फलकनुमा, किलवत, पुरानी हवेली, दबीरपुरा, मल्लेपल्ली और दीगर मुकामात पर बकरों की कसीर तादाद देखी गई है। 14,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की जोड़ियां भी मार्केट में नजर आईं। अगर बाजार में आइंदा 2 दिनों में मजीद जानवर पहुंचते हैं तो बकरों की कीमत में मजीद कमी हो सकती है। एक हफ्ता कल बाजार में जानवर लाए गए थे, लेकिन अफसोस की बात यह देखने में आई कि जानवरों को चारा तक नहीं दिया जा रहा है। ताजरीन को इस सिलसिले में तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानी का जानवर सेहतमंद होना चाहिए और उसे मौसर चारा और पानी भी मिलना चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हैदराबाद को स्लम से पाक बनाया जाएगा। मुशराबाद भोईगोड़ा इलाके में IDH कॉलोनी के मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बुनियादी सहूलतों के साथ 396 मकानात की तामीर की जाएगी। शहर के मज़ीद इलाकों में भी ऐसी ही कॉलोनियाँ तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कॉलोनी कायम करने के नाम पर बस्ती खत्म नहीं होगी, बल्कि अवाम के लिए पक्के मकानात तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि जबरन कब्जा की गई अराजियात को जब्त करते हुए उसे गरीबों में तकसीम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में करोड़ों रुपए मालियत की अराजियात पर जबरन कब्जे किए गए हैं और सर्वे के जरिए इस बात का भी पता चला है कि कौन चोर है और कौन साहूकार है। KCR ने कहा कि तेलंगाना रियासत को मुल्क की मिसाली रियासत भी बनाया जाएगा। उन्होंने स्लम इलाकों और गरीब आवाम के लिए शुरू किए गए बहबूदी प्रोग्रामों में मरकजी हुकूमत से ताउन की भी दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने कहा कि स्लम इलाकों में बहुत जल्द तरक्याती कामों का आगाज किया जाएगा और स्लम बस्तियों का अवामी नुमाइंदों के साथ दौरा किया जाएगा। హైదరాబాద్ సిటీలో మురికివాడ అనేది ఉండదు. ఇది నమ్మకం అనిపేది, పానం నమ్మది, కానీ ఉండదు. ఇది KCR మాట. ప్రజలు ఎక్కడ సహకరిస్తే అక్కడ అద్భుతమైనటువంటి కాలనీలు హైదరాబాద్లో తీసుకొస్తాం. అది పెద్ద సమస్య కాదు, ఎందుకంటే నా పక్కకు 100% ఎక్కడ బస్తీ ఉందో, ఎక్కడ పేదలు ఉన్నారో వాటన్నిటినీ గత ప్రభుత్వాలు చాలా క్రూరంగా కర్కశంగా బుల్డోజర్ పెట్టి కొట్టేసిండ్రు.
మీ దగ్గరికి ఏ బుల్డోజర్ కూడా రాదు. ఏ బస్తీలో ఉన్న పేదలకు ఆ బస్తీలని బిల్డింగ్లు కట్టిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నా. ఒక నాలుగే పీసులు హైదరాబాద్ చుట్టూ పెట్టిన కబ్జాలో 4 తుగుడలు తీసుకొని అమ్మి పారేస్తే 20,000 కోట్లు వస్తాయి. దాంతో బ్రహ్మాండంగా పేదలకు అద్భుతమైన ఇల్లు కట్టారు. హైదరాబాద్ స్లమ్స్ లో ఏ విధమైన పని జరుగుతుందో 10 రోజులు 12 రోజులు నగరం నుంచి ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను ఎంపీలను కూడా ఇలా పార్టీలు చిల్లర రాజకీయాలు లేకుండా అందరిని వెంబడేసుకొని నేనే అన్ని కూడా పర్యటన చేస్తాను. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बेगमपेट ता बलकमपेट लिंक रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। बहसते वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का जेएचएमसी हुदूद में यह पहला सरकारी प्रोग्राम था। इस लिंक रोड की कुशादगी से अमीरपेट सनतनगर ता कुकटपल्ली जाने वाले अवाम को ट्रैफिक के मसले से छुटकारा मिलेगा। कुकटपल्ली ता सिकंदराबाद जाने वाले अवाम को भी 2 किलोमीटर कम फासला तय करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इस प्रोजेक्ट पर 7 साल से काम जारी था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात से कबल पार्टी को मजबूत करने के लिए सियासी हिकमत के तहत अवाम के करीब होने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। केसीआर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जय तेलंगाना का नारा जेएचएमसी कॉरपोरेशन इंतखाबात में उनको कामयाब नहीं बना सकता, इसलिए वो अवाम के करीब होने के मंसूबे के तहत हैदराबाद को आलमी सतह का शहर बनाने के साथ साथ पुलिस को अवाम दोस्त बनाने के इक़दामात भी कर रहे हैं। अवाम के मसाइल की समाअत के लिए बहुत जल्द टोल फ्री नंबर 211 या 311 करने का भी मंसूबा बनाया गया है। फिलहाल अवाम के मसाइल की समाअत के लिए टोल फ्री नंबर 040-211-1111 काम कर रहा है। ताहम तशहीर न होने से अवाम इससे इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के दौरान इस बात का पता चला है कि जिसके बाद हुकूमत ने फौरन नए अंदाज में टोल फ्री नंबर शुरू करने और अवाम के मसाइल की यकसोई के लिए इक़दामात का मंसूबा बनाया। इस टोल फ्री नंबर के ज़रिए अवाम के मसाइल के साथ साथ मौजूदा कॉरपोरेटर्स की कारकर्दगी का भी पता चलेगा, जिससे उनको कॉरपोरेशन इंतखाबात में काफ़ी मदद मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बिलाखिर सेक्रेटेरिएट में कदम रख दिया। दशहरा त्यौहार के मौके पर जुमे को दोपहर 2 बजे वो सेक्रेटेरिएट में दाखिल हुए और एल ब्लॉक के 8वें फ्लोर पर अपने चैम्बर में मजहबी रिवायात और तरीक़े से काम का आगाज़ किया। इससे पहले आंध्र प्रदेश सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने वज़ीर आला का खैर मक़दम किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नेकलेस रोड अंबेडकर नगर के इलाके का दौरा करते हुए घर घर जाकर अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने अवामी मसाइल की समाअत के बाद ये तयक़ुन दिया कि यहाँ भी IDH कॉलोनी के तर्ज पर मकानात तामीर किए जाएंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमे को औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के मजलिसी उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी का मुकामी अवाम की तरफ से नारों की गूंज में वालेहाना इस्तकबाल किया गया। नौजवानों और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने सदर मजलिस की गुलपोशी की। इससे पहले जुमेरात की रात औरंगाबाद वस्ती हल्के के मजलिसी उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील की इंतखाबी ग्रुप मीटिंग से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मुकामी मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद बरकरार रखते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अलावा हैदराबाद और औरंगाबाद के मजलिसी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। दशहरा त्यौहार के मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अवाम को मुबारकबाद पेश की है। अपने प्याम में वज़ीर आला ने कहा कि जिस तरह बदकम्मा त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाया गया, उसी तरह दशहरा त्यौहार भी मनाया जाए। वज़ीर आला ने इस उम्मीद का इजहार किया कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दशहरे का ये पहला त्यौहार अवाम की ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा।
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी दोनों रियासतों के अवाम को दशहरे की मुबारकबाद पेश की है। शहर में दशहरे का त्यौहार रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात की मनादिर में पूजा की गई। बहादुरपुरे की 250 साल कदीम मंदिर में भी पूजा की गई। मंदिर के पुजारी ने पूजा के लिए आने वाले भक्तों को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद दी। इकबालगंज पुराने पुल में सेंधी कंपाउंड तामीर किए जाने के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि दरगाह दौलत सिकंदर बाबा के अहाते की दीवार से मुत्तसिल सेंधी कंपाउंड तामीर किया जा रहा है। इसके अलावा कंपाउंड के करीब मंदिर और स्कूल भी है। ऐसी जगह कंपाउंड कायम करने से अदालत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी होती है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि रिहायशी इलाके में कंपाउंड कायम किए जाने से ख़ास तौर पर ख़वातीन और स्कूली बच्चों को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने सब कुछ जानते हुए भी सेंधी कंपाउंड खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया है। एहतजाजी जो अपने हाथों में प्लकार्ड्स थामे हुए थे, कंपाउंड खोलने के अहकामात वापस लेने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस सिलसिले में एक तंजीम की जानिब से दस्तखती मुहिम के जरिए कुलसुमपुरा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मेहदीपट्टनम में एक मोटरसाइकिल सवार अचानक गिरकर फौत हो गया। 30 साला उमर बिन सलीम जुमे की सुबह 2 बजे मेहदीपट्टनम से जा रहे थे कि वो अपना तवाजुन खो बैठे और नीचे गिर पड़े, जिसकी वजह से उनके सर पर शदीद चोटें आईं। उन्हें उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गए। हिमानगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। लाखों फर्जंदान तौहीद हज अकबर की सआदत से मुशर्रफ। मुसलमानों को अहकाम इलाही की पाबंदी करने मुफ्ती आजम ने की तलकीन। शहर में कुर्बानी के जानवरों की मनमाने कीमतों में फरोख्त। ईद से एक दिन कबल कीमतों में कमी का इम्कान। मुशीराबाद IDH कॉलोनी में मकानात की तामीर का चीफ मिनिस्टर ने रखा संगे बुनियाद। बेगमपेटा बलकमपेट लिंक रोड का इफ्तिताह। और औरंगाबाद में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मजलिसी उम्मीदवारों के हमरा दौरा। अवाम ने किया जबरदस्त खैर मकदम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।